Hello students. In the previous class we saw the difference between transverse wave and longitudinal waves, right? Today we are going to discuss about some characteristics of waves. Okay, so let's see what are the characteristics. Starting with phase. See all the points, just look at the diagram carefully. All the points on a wave which are in the same state of vibration are said to be in the same phase. I'll repeat, all the points on a wave which are in the same state of vibration are said to be in the same phase. Matlab, according to this diagram, I can say point B, F and J all will be in the same phase. All lie on the crust, right? And the direction of vibration is all same. Okay, same state of vibration. So B, F and J are in the same phase. Similarly, check D and H. Check the state of vibration. Same state of vibration, right? So they will be having the same phase. That means both are lying on troughs, right? Now check point A, E, I. All three are in the same phase. All these points are just about to start their vibration in the upward direction, right? The direction is shown to you. Direction of propagation is shown by this arrow. So all in the upward direction. So all are said to be in the same phase. Now check point C, G and K. These will be in the same phase. All are about to start their vibration in the downward direction from their mean position. Okay. So this is what we call phase. All the points on a wave which are in the same state of vibration are said to be in the same phase. Alright. So this is one characteristic. Now let's look at the next one. Wavelength and amplitude. Now what is amplitude? The maximum displacement of the particle of a medium from their mean position during propagation of a wave is called amplitude of the wave. It's shown in this figure. Check out the maximum displacement. This is the peak, right? So this is the maximum displacement. So this distance will be called as amplitude. Okay. So maximum displacement of the particle during wave propagation is equal to the, what you can say, height of the crust. This is crust, right? So maximum, this is the height of the crust, or you can say the depth of the trough. This will be the depth. Okay, this distance. So depth of the trough, this is what we call amplitude. The another way of defining, instead of saying maximum displacement, you can also say the height of crust or depth of trough in a wave is called amplitude. Okay. Generally, we represent amplitude by capital letter A. Okay. We use capital letter A to denote amplitude. So the SI unit of amplitude, since it's a displacement, so we know the SI unit of displacement is what? Meter. So the SI unit of amplitude is meter. Okay. So it is a measure of energy. Amplitude of a wave is a measure of its energy. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतना ज्यादा एनर्जी वो वेव कैरी करता है. दैट इज द मीनिंग. ओके. सो नाउ गोइंग टू वेवलेंथ. व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव विच आर इन द सेम फेस. सेम फेस मैंने बोला ना, यहाँ पे सेम फेस क्या होगा? ये सेम फेस है, ये भी सेम फेस है, ये सेम फेस पे, ये सेम फेस पे. समझ गए? सो मैं ये कह सकती हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू successive compression region या distance between two successive rarefaction region, उसको हम wavelength कहते हैं. यहां से लेके यहां तक का ये जो distance होगा that will be wavelength. Okay. So कैसे बोल सकते हैं? Distance between two nearest या adjacent trough या distance between two crust, neighboring crust, उसको हम कहते हैं wavelength. SI unit, again this is distance, तो इसका SI unit क्या होगा? मीटर होगा. ठीक है. हाफ वेवलेंथ क्या होता है वो भी बता देती हूँ. हाफ वेवलेंथ विल बी डिस्टेंस बिटवीन द adjacent crust and trough on a wave. मतलब ये होगा. अब यहां से लेके
यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये जो है ये हाफ क्रस्ट रीजन है और ये क्या होगा, हाफ ट्रफ रीजन होगा. सो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2. वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्डा. ओके, लैम्डा इट्स अ ग्रीक लेटर. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वे. ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ये इसको लैम्डा कहते हैं. ठीक है, सो ये होता है वेवलेंथ. हाफ वेवलेंथ यानी आधा क्रस्ट और आधा ट्रफ. डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन अ वेव, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको लैम्डा बाय 2 या हाफ वेवलेंथ कहते हैं. समझ गए? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड. अब देखते हैं दूसरा, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक रेट होता है एट विच वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स. रेट एट विच द वेव्स आर प्रोड्यूस, उसी को हम फ्रीक्वेंसी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. यानी वो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स या वेव साइकिल जो प्रोड्यूस होता है पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. या उस वेव्स को मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मेड बाय अ बॉडी और पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ मैं कह दूं साइकिल्स, वेव साइकिल्स, या नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, उसको ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, हर्ट्स है. एच जेड, कैपिटल एच होगा ये, एच जेड, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर जेड. ओके, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स होता है, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड 1 हर्ट्ज जेड, 1 हर्ट्ज, दिस इज 1 हर्ट्ज विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 वेव पर सेकेंड. 1 वेव पर सेकेंड. ठीक है, मतलब अगर एक एग्जाम्पल लूँ, अगर एक पीरियोडिक वेव है, 25 वेव साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 25 वेव्स प्रोड्यूस हुआ 1 सेकेंड पे, सो फ्रीक्वेंसी विल बिकम 25 हर्ट्ज. समझ गए? ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम through which it is traveling, so it remains same whether it is in air, water, oil, etc. ठीक है, अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड होता है जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वेव को टू कंप्लीट 1 साइकिल, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है, यानी टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रैवल थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ, या टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल और अ बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन या 1 साइकिल इज नोन एज पीरियड. उसको कैपिटल लेटर डी से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड. वैसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम यूजिंग दिस लेटर, ओके, म्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, या फिर ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्मॉल लेटर एफ यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 बाय टाइम पीरियड. ऐसा यूनिट तो टाइम पीरियड का हमें पता ही है, क्या है, सेकेंड्स. कैसे हमें पता चला, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड. सी, मान लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस्ड है टी सेकेंड्स के लिए, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड हमने कैपिटल लेटर टी लिया, सो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो कितना होगा टी सेकेंड्स में, 1 होगा, राइट. नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन टी सेकेंड्स विल बी 1. ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, 1 बाई टी होगा, राइट. नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज 1 बाई टी. सो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितना है, 1 बाई टी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाय टी हर्ट्ज. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाय टाइम पीरियड. ऑलराइट, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, वैसे बिफोर वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मैं समझा देती हूँ कि वेव वेलोसिटी क्या होता है. वेव वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड. यानी
वेलोसिटी विथ विच द वेव इज ट्रैवलिंग, उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से वेव ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी का होता है। ठीक है, पर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, यानी जो साउंड वेव का डिफरेंट मीडियम में जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट वेव में डिफरेंट ये होता है। जैसे अगर मैं बोलूं इट्स डिफरेंट फॉर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में वो 343 होता है, लेकिन वाटर में वो 1493 मीटर पर सेकेंड पे जाता है। सो डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। अब देखते हैं ये वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। सी, फ्रॉम द फॉर्मूला हमें ये तो पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन होता है। वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, राइट। व्हेन वी लुक इनटू इट थ्रू द वेव फॉर्मूला, यहाँ पे वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द वेव, राइट। सो वेव में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो होता है वेवलेंथ, और टाइम टेकन क्या होगा, टाइम पीरियड, यानी कैपिटल लेटर टी। तो हमें मिल जाता है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ बाय टाइम। एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट, सी, इसी वेव वेलोसिटी के फॉर्मूला को मैं लैम्डा इंटू 1 बाय टाइम पीरियड लिख सकती हूँ, इसी चीज को, राइट। सो ये जो 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी। So velocity is equal to wavelength of the wave into frequency of the wave. समझ गए? This is the relation between wave velocity, frequency and wavelength. ठीक है? अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं ये। A person has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. ठीक है, आपको रेंज दिया हुआ, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन टू योर। तो कैसे सॉल्व होगा, सी, हियरिंग रेंज क्या दिया है आपको, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, फॉर्मूला हमें वेवलेंथ का पता है कि वेव वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो बस सब्सटीट्यूट करना है आपको। पहले आप क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज लेंगे, ठीक है, लैम्डा, और स्पीड आपको दिया है 344, आपको क्या दिया है, सी, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 20 हर्ट्ज पहला केस के लिए, और दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले F1 के लिए आप लैम्डा 1 ढूंढो। तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, सो 344 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सिमिलरली फिर वेलोसिटी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 20,000 हर्ट्ज हो जाता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 344 बाय 20,000। सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट, very simple question. A person is listening to sound of 50 hertz sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. What is the time interval between the successive compression from? ये 450 मीटर आपको बस कंफ्यूज करने के लिए। टाइम पीरियड, टाइम मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, F इज इक्वल टू, F क्या होता है, 1/T होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, T ढूंढना है, तो T क्या हो जाएगा, 1/F, सो दैट विल बी 1/50 हर्ट्ज। तो इतने सेकेंड्स होंगे, 1/50 सेकेंड्स विल बी द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लो इस चीज को। ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 1/50 हर्ट्ज, यानी 0.02 सेकेंड्स। ये मीटर नहीं होगा, सेकेंड्स होगा, दिस विल बी सेकेंड्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साउंड का। ये जैसे लाउडनेस हुआ, पिच हुआ, ये कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए। सी, नाउ लुक एट दिस ग्राफ। लाउडनेस ऑफ साउंड कैसा कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन।
ठीक है, loudness of a sound depends on the amplitude of the vibration producing that sound. जितना ज्यादा amplitude of vibration होगा, louder is the sound produced by it. यानी ये डिपेंड करता है अपॉन द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. समझ में, ये डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेड टू वाइब्रेट. मतलब क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज मेड टू वाइब्रेट, उस पर डिपेंड करेगा. सो इट इज मेजर्ड इन व्हाट. लाउडनेस किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है. डेसिबल ये है उसका यूनिट. हम उसको रिप्रेजेंट डीबी ऐसे करते हैं, इससे करते हैं. उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में. ठीक है, मतलब एक्चुअली ये डेसिबल जो है वो इट इज नेम्ड आफ्टर ए अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पे ये जाता है. द सॉफ्टेस्ट ऑडिबल साउंड जो होता है डेसिबल स्केल का वो 0 dB होता है. ठीक है, डीबी मतलब डेसिबल यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. ठीक है, तो मैंने जैसे कहा इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. जितना कम एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड यानी ये डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर. तो जितना कम ये एम्पलीट्यूड होगा उतना सॉफ्ट साउंड होगा. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, अब ये देख सकते हैं ये एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस जो है इससे कम है, इससे ज्यादा है, ये कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है. तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड क्या होगा? लाउड होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. पिच या श्रिलनेस. क्या होता है ये पिच या श्रिलनेस? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. पर ये होता क्या है? सी मतलब एक साउंड जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल नोट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फ्लैट नोट, उसको हम पिच कहते हैं. श्रिल नोट को हम अगर फ्लैट नोट से अगर हम जिस फैक्टर के वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं उसको हम बोलते हैं पिच. ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज्यादा पिच होता है. जैसे अगर बोले कि वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमन जो होता है उनका फ्रीक्वेंसी हाई होता है देन द वॉइस ऑफ अ मैन. That is why the voice of a child or a woman is more shrill as compared to the voice of a man. This is because men have long vocal cords. समझ में? क्योंकि उनका vocal cords क्या होता है? Long होता है. The faster is the vibration of the source, higher will be its frequency. Therefore, higher will be the pitch. जैसे membrane of तबला, stretched membrane जो होता है तबला का, वो higher frequency देता है. ठीक है, जैसे फ्लूट से जो आता है वो हायर पिच का आता है, व्हीकल से जो आता है वो लो पिच का होता है. समझ गए? और एक और चीज याद, अब जैसे ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें सेम टाइम पीरियड में ये दिख रहा है आपको कम है, लो पिच है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो पिच क्या हो गया? लो हो गया. पर यहाँ पे देखो उसी टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी साइकिल्स जो है वो बहुत सारे हो गए, है ना? तो यहाँ पे क्या है? हाई पिच है. मतलब इससे आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन समझ में आ रहा होगा. कैसा है? फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से. मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम पिच होगा, है ना? यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? हायर वेवलेंथ मीन्स लो फ्रीक्वेंसी. ऐसा समझ गए आप लोग? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, टिम्बर या क्वालिटी और इंटेंसिटी. टिम्बर या क्वालिटी मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच. अगर सेम लाउडनेस और सेम पिच है तो उस साउंड को फिर भी हम कैरेक्टराइज करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर बोलते हैं. ठीक है, याद रखना जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, प्योर साउंड जिसको बोलते हैं, उसको टोन बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया टिम्बर क्वालिटी के बारे में. अब बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में. इंटेंसिटी क्या होता है? इट डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया. ये है फॉर्मूला. साउंड एनर्जी जो ट्रांसफर होता है पर यूनिट एरिया पर टाइम पे थ्रू पर यूनिट थ्रू अ यूनिट एरिया placed perpendicular to the direction of propagation, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट
टाइम थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. ये हमारे कानों पे डिपेंड नहीं करता है, बट कितना एनर्जी परपेंडिकुलरली ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाट मैटर्स. ठीक है, एक सरफेस से कितना एक परपेंडिकुलर अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक यूनिट एरिया और एक यूनिट टाइम पे, जितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी. ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एनर्जी का जूल्स होता है, राइट. टाइम का क्या होता है? सेकेंड्स. और एरिया क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी.